and qualification is aircraft maintenance of engineer. So currently for working in a flying simulator training center which is located in Gurgaon, Haryana as a simulator engineer. Okay, and you are B2 AME or degree B2 holder? B2 Okay. avionics, B2 avionics. Okay. Your all modules are clear? All nahi for 2 is remaining. Acha, two is remaining. Okay, it's a good time. Okay, another one. Acha, name has been changed. It's Ansu, Ashu. Ashu, please go ahead. Acha, you don't have mic. Okay, you can type your introduction in the chat box. Okay, I'll see there. Okay, another one is Ashu. Yes, please go ahead. Ashu, if you introduce yourself, that will be good for us. Okay. अच्छा चलो कोई बात नहीं ठीक है so basically I had told that if you are involved in the aircraft operations or aircraft maintenance ठीक है aircraft all drones are also any aircraft ठीक है including drones and every other unmanned aerial vehicles everything is comes under the definition of aircraft so if you are involved in aircraft maintenance or aircraft operations then you should have RTR license without RTR license you cannot communicate with ATC ठीक है apart from this if you are willingly try to clear RT because this is quite interesting thing and have significant relevance ठीक है a different kind of language if someone has studied this course earlier I think might be one or two are already having some introduction of this course उन्होंने शायद पहले भी कहीं क्लास ले रखा है so they might have know this is quite a interesting topic to understand ठीक है and quite a interesting language to learn ठीक है so now I'm going to explain about RT ठीक है recording is on with this much student only I'll continue with the session so basically this is a demo session I don't mean to say demo for me because I have uploaded multiple lectures on YouTube where you can see as a demo but this is basically a introduction of RT why it is required how it is being conducted and what is the benefit of it okay so as I told, if you are involved in the operations, it is compulsory for you. Done. Now, in earlier days, if you are a RT holder in your maintenance team or operations, तो वहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते थे ठीक है एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स आपको मिला करता था नाउ-ए-डेज आई डोंट थिंक दिस इज देयर ठीक है अभी कुछ भी एक्स्ट्रा पर्क्स या इंसेंटिव्स नहीं है इस पे बट मे बी सून ठीक है आफ्टर 6 months max to max 6 months, you should definitely have their extraordinary benefit. Why I'm saying extraordinary benefit? Because exam is going to be so much of different and a little tough as well. ठीक है अभी तक ये एग्जाम ठीक है now we'll just share my screen. Please confirm if it is visible and then I'll brief the RT exam type and its pattern. Please do let me know if a screen shared is visible. Yes, sir. It is visible. ठीक है for all candidates is it visible? Yeah, visual, sir. ठीक है so till the time this RT examination is being conducted by under the Ministry of Telecommunication ठीक है under the see ministry is communication under the government of India in that there is a department of telecommunication ठीक है and there is one section that is WPC wireless planning and coordinations ठीक है whatever the channels they are going to allocate over the wireless communication this is not a LAN to LAN communication no any broadband or wired network this is wireless network for communication so this exam was being conducted by WPC ठीक है wireless planning and coordination wing ठीक है and till the time this is the same department which are allocating radio frequencies for the mobile operators जितने भी सिम कार्ड ऑपरेटर्स है ना एयरटेल वोडाफोन आइडिया जियो ये सब जितने भी हैं
इन सबको भी रेडियो फ्रीक्वेंसी यही डिपार्टमेंट एलोकेट करती है, WPC, ठीक है। सो वायरलेस प्लानिंग एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, सॉरी कोऑर्डिनेशन, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इंडियन गवर्नमेंट. They were conducting, why I am saying where, because certain rule has came, ठीक है, there I'll discuss later on. They were conducting this examination over the 6 location across India, ठीक है, as per our regular government of India regional connectivity policy. Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, or our metropolitan cities. Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, one at each, ठीक है, and one was at Hyderabad, and in New Delhi it was twice in a year. So total 6 times they were conducting the examination of RT. Now this examination is going to be part of DGCA, Director General of Civil Aviation, Directorate General of Civil Aviation. They are going to conduct the examination. Till now they haven't issued any syllabus, any examination criteria, any examination pattern, ठीक है. So upcoming 2 sessions in August and October. अगस्त में दिल्ली में एग्जाम होगा, अक्टूबर में हैदराबाद में होगा. So these 2 sessions, ठीक है, these 2 sessions is going to be conducted under WPC. After that DGCA will take the charge. So what they are going to do, what syllabus they are going to issue, that is to be seen later on, ठीक है. बाद में वो लोग क्या पब्लिश करते हैं, कैसा एग्जाम वो लोग कंडक्ट करेंगे, वो उनके सर्कुलर इशू होने के बाद पता चलेगा, ठीक है. अभी तक के लिए इस एग्जामिनेशन का फीस है 500 रुपए, ठीक है. बट चार्जेस DGCA हैज ऑलरेडी सर्कुलेटेड. दिस इज गोइंग टू बी 7,500 एज ए एग्जामिनेशन फीस. एंड नॉट ओनली दिस, अभी तक RT एग्जाम का पैटर्न है. सपोज आपने एक बार एग्जाम अटेंड किया, somehow you got failed, you are not able to pass it, you can attend the next session which is going to be conducted after 1 month. But DGCA has going to put some criteria. If you have failed, you cannot attend till 90 days, means another 3 months you cannot attend the examination. Also, if you have failed 3 times, you will be restricted to appear in the examination for 1 year, ठीक है. Like our operations and मेंटेनेंस मॉड्यूल एग्जामिनेशन, इफ यू आर कंटिन्यूअसली फेलिंग 3 टाइम्स, आपको 1 साल तक के लिए एग्जाम में अपीयर होने नहीं दिया जाएगा, ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी टफ इफ DGCA विल टेक द चार्ज. ऑल्सो आई एम नॉट सेइंग कि इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ. टाइम के साथ जो भी चेंजेस आएंगे स्टूडेंट को एकोमोडेट करना पड़ेगा. डजंट मैटर व्हाट इट टेक्स, व्हाटएवर इट विल टेक, इफ दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फील्ड, आपको वैसा पढ़ के पास करना ही पड़ेगा. सो दैट विल बी सीन लेटर ऑन कि बाद में वो लोग क्या सिलेबस लॉन्च करते हैं, कैसे प्लान किया जाएगा, हाउ द एग्जाम पैटर्न एंड व्हाट टाइप ऑफ एग्जाम दे आर गोइंग टू कंडक्ट, वो सब बाद में देखेंगे. फिलहाल वी हैव 2 अपॉर्चुनिटीज, वंस इन दिल्ली अगस्त में एंड अक्टूबर का हैदराबाद. So if you really need the RT license, because if you are already working candidates, that's why I had asked for introduction, then you should know the value of this RT license, ठीक है. I'm not a seller and I'm not a sales team of RT कि मैं आपको RT promote करूं, no, ठीक है. If this is valuable for you, you should know the value, and I think you all must know the value of it, how important it is. और एक बार DGCA के हाथ में एग्जाम चला जाएगा, शुरू के 6 महीने से लेके 1 साल तक अल्टीमेटली टफ होगा, ठीक है. मार्क माय वर्ड्स, दिस इज गोइंग टू बी अल्टीमेटली टफ. उसके बाद स्मूथ हो जाएगा, बिकॉज पीपल आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इट, दे विल टेल देयर एक्सपीरियंस एंड दे कैन आल्सो हैव देयर ओन फीलिंग्स कि अभी क्या चेंज आया. तो आफ्टर 6 मंथ दिस इज गोइंग टू बी स्मूथ फॉर एवरीवन. बट शुरू का 1 साल बहुत टफ होने वाला है. सडनली न्यू सिलेबस आपके सामने पटक दिया जाएगा, यू कैन नॉट गेट इट, ठीक है. तो अगर आपको RT जरूरी है, like you all have told कि आपने बहुत सारा एग्जाम पास कर लिया है, only 1 or 2 papers are left for your licensing purpose, तो आपको आप पता होगा आपको कि RT कितना इंपॉर्टेंट है. So please do prepare, ठीक है. doesn't matter you are going to attend the institution with us, ठीक है, with me or any other instructor.
ठीक है, टेक इट सीरियसली, यू हैव ओनली 2 अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, कहीं भी पढ़ो, कहीं भी ज्वाइन करो, बट ट्यूशन कोचिंग ज्वाइन करके आप अपना RTR एग्जाम क्लियर करो टाइमली, ठीक है, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी टफ इन द फ्यूचर, ठीक है। आई विल नॉट से कि हमारे साथ कंटिन्यू करो, कहीं से भी करो, आपके नियर बाय दिल्ली में आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंडक्टिंग ऑफलाइन एग्जामिनेशन, सॉरी दिस कोर्स ऑफलाइन फिजिकल क्लासरूम है, तो अगर आपको वहां पे रीच आउट है, जाके पढ़ो, ठीक है, doesn't bother about anything. Go and simply have the tuition and clear the RT within 4 to 5 months, whatever the time we are having under WPC. नहीं तो उसके बाद टफ हो जाएगा, और ऐसा नहीं है कि टफ होगा तो कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा फील्ड में, नहीं, वो प्रॉब्लम सिर्फ आपके लिए आएगा, जहां पे आफ्टर 1 or 2 month you can be a licensed engineer, you can have been promotion in your department, वो आपका डिले हो जाएगा, ठीक है, दैट इज द अल्टीमेट थिंग। लाइक अगर आपका RT लाइसेंस क्लियर हो जाता है तो आपको लाइसेंस के लिए टाइप कोर्स करवा दिया जाएगा इन द इंडिगो एंड मेनी अदर कंपनीज, दे आर गिविंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रेशर्स नाउअडेज। और अगर आप पायलट या ड्रोन इंस्ट्रक्टर हो तो आपका वहां पे लाइसेंस हो जाएगा। तो अगर आपका टाइमली क्लियर नहीं होगा तो आप ही का करियर थोड़ा डिले होगा, ठीक है। आफ्टर ऑल आपको कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा और कभी ना कभी तो रिजल्ट आएगा ही, बट थोड़ा सा इस आगे के 4 महीने के अपॉर्चुनिटीज को सीरियसली लो और अपीयर करो एग्जाम के लिए, और कहीं ना कहीं से कोचिंग इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन कर लेना। व्हाई आई एम सेइंग दिस, आई एम एक्सप्लेनिंग इट नाउ, ठीक है। So I'm going to explain the exam type, exam pattern, and conduct of examination. Till now, this was the briefing about RT. ठीक है, is that clear to everyone? Exam का type Yes, sir. समझ में आ गया? What is it? What is the RT? Is that clear to everyone? Yes, sir. Clear. ठीक है. One more candidate has joined, Akhilesh. Akhilesh, if you don't mind, can I have your introduction, please? I'd like to basically know about your education qualification and working experience. Yes, sir. Can I have your introduction? Yes, sir. So myself, Akhilesh Verma, sir. Mm-hmm. I am MEB background, sir. Okay. I have working experience 2 years, sir. That doesn't matter. Where you are working, which company? Indmar Aviation Private Limited, Nagpur base. Nagpur based. ठीक है. And about your modules, papers, how much it is clear? So 4 modules. 4 modules you have cleared. Yes, sir. Okay. ठीक है. ठीक है. And what are those 4 modules? Which year you have passed basically? Sorry, sir. Which year you have passed your course? Which 2023, sir. अच्छा 3147 candidate. ठीक है. See, if I say honestly, ठीक है, apart from this business and sales perspective, if I tell you honestly, if you have cleared 4 modules now, ठीक है, if you have cleared your 4 modules, I won't recommend it for the RT examination now, ठीक है, I won't recommend you for the RT examination because without modules, RT is having no any values, nothing. RT is mandatory after certain requirements, but with 4 modules and all, I will not recommend. Please do focus on your paper first, ठीक है, जितने जल्दी पेपर पास करोगे, ठीक है, good thumbs up for you, but with this I won't recommend, ठीक है। Anyhow, you should have your introduction about RT. आप इस एग्जाम पैटर्न को जान लो, बाद में आपका जब भी काम आएगा डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है, बट अभी आप पेपर पे ज्यादा फोकस करो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, ठीक है। आई वोंट से कि आओ अटेंड कर लो, पैसे भी जाएंगे, टाइम भी जाएंगे, नो, पेपर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। Now I'll tell about the conduct of RT examination, how it is being conducted, ठीक है। So as I have already told, exam is being conducted by WPC, right? Confirm if shared screen is visible to all. Visible है सबको? Yes, sir. It is visible. ठीक है. Now this exam is being conducted by WPC, ठीक है, and this exam is being conducted in 2 parts.
part 1 and part 2. Part 1 of the examination is of essay answer writing type. ठीक है, essay answer writing type means होता है आपको आंसर लिखने पड़ेंगे, बट वो MCQ या ऑप्शनल नहीं होंगे. ठीक है, those question and answers will be subjective. essay answer writing आपको आंसर लिखना पड़ेगा उसमें. ठीक है, सब्जेक्टिव्स होंगे. ठीक है, part 1. Part 2 is going to be oral. Basically you can say viva. ठीक है, oral or viva, whatever you want to say. Now in part 1 examination, ठीक है, in part 1 examination there is 5 question only. ठीक है, 5 questions and 30 minutes. 5 question 30 minutes. Done. You need to write the answers within 30 minutes, but the main and ultimate important thing is you cannot simply write the answer. आपको आंसर सिर्फ लिखना नहीं होता है. You need to write as well as you need to speak at the same time, simultaneously. Suppose if I'm writing my answer, my name is Ankush Kumar, so I should say like this, my name is Ankush Kumar, like this. आपको बोलना भी है और लिखना भी है, दोनों साथ में होने चाहिए पार्ट 1 के लिए. ठीक है, और यही इस एग्जाम का सबसे बड़ा चैलेंज बनता है. बोल बोल के लिखना इज अ बिगेस्ट चैलेंज इन दिस एग्जामिनेशन. तो आधे घंटे का पेपर है, 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. टोटल मार्क्स रहते हैं 100 एंड 50 इज योर पासिंग मार्क्स. बोलोगे ओके सर, नेवर दो वरी, हो सकता है, क्या दिक्कत है, कर लेंगे, लिख लिख के बोल लेंगे. Now, the another important thing is whatever the examination type we have seen till the time, आपने जनरली क्या नोटिस किया होगा कि एक एग्जाम रूम में 25-30 कैंडिडेट बैठे होते हैं या 60 कैंडिडेट बैठे हुए हैं. एक एग्जामिनर या एक इन्विजिलेटर पूरे क्लास को मॉनिटर करता है, राइट, और स्टूडेंट अपना चुपचाप एग्जाम दे देते हैं. बट आरटी एग्जामिनेशन इज नॉट सच. एक बार में मैक्सिमम 6 से 8 कैंडिडेट रहते हैं. ठीक है, एक बार में मैक्सिमम 6 से 8 कैंडिडेट रहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, और हर एक स्टूडेंट के पीछे एक एग्जामिनर रहता है. तो आपके अगर सामने बैठ के कोई आपसे टेस्ट ले तो आधा ध्यान तो आपका नर्वसनेस ले जाएगा. ठीक है, इंटरव्यू इसलिए टफ होता है ना क्योंकि 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हो जाता है. तो एक स्टूडेंट एक एग्जामिनर, तो एक बार में 6 स्टूडेंट एग्जाम देते हैं. ठीक है, एक स्टूडेंट एक एग्जामिनर, और वो आपको पीछे से ऑब्जर्व करेगा, और आप जो लिख लिख के बोलोगे वो वाली बातें आपके एग्जामिनर को सुनाई देनी चाहिए. ऐसा नहीं कि मरमरिंग करके धीरे धीरे बोल लिया, नहीं, आप जो भी बोलोगे वो एग्जामिनर को सुनाई देनी चाहिए. पार्ट 1 का एग्जामिनेशन. ठीक है, तो आपको 1-to-1 मॉनिटर किया जाएगा इन द एग्जामिनेशन. नाउ अबाउट द पार्ट 2. Part 2, you are going to face 2 panelists. One is from WPC, one is from DGCA. Basically, they will ask certain question, that is viva and oral. वो आपसे basically आपके फील्ड के बारे में पूछेंगे. If you are a flying candidate, आपसे pilots के operations या flight dispatch, flight planning, इन सब के बारे में questions पूछेंगे. If you are an engineering candidate, आपसे एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स पूछेंगे, आप एयरपोर्ट पे क्या काम करते हो, कैसे मेंटेनेंस करते हो, ये पूछेंगे. एंड सपोज समवन टोल्ड कि ही इज अ ड्रोन इंस्ट्रक्टर, ट्रस्ट मी, दे आर गोइंग टू डेफिनेटली आस्क अबाउट ऑपरेशंस ऑफ ड्रोन. इफ यू आर कॉलेज स्टूडेंट, हैवंट पास्ड येट, वो आपसे बेसिक एविएशन नॉलेज चेक करेंगे. ठीक है, एंड इफ यू आर आउट ऑफ फील्ड, whichever department you are working on, operation, finance, anything, they are going to ask your relevance, how RT is relevant to your field. तो वाइवा का कोई भी सिलेबस या सेट ऑफ क्वेश्चंस प्री डिसाइडेड नहीं है. wherever you are working, they are going to ask about that. ठीक है, ट्रस्ट मी, इसमें किसी भी टाइप का रेसिज्म जैसा बात नहीं है.
कि आप भले इंजीनियरिंग कैंडिडेट हो, आपसे पायलट वाली चीजें ही पूछेंगे, नहीं। बट पार्ट 1 इज सेम फॉर ऑल। पार्ट 1 का क्वेश्चन का पैटर्न सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट एंड पार्ट 2 वेरीज। तो पार्ट 1 का जो एग्जामिनेशन होता है, दिस इज एज अ रोल ऑफ पायलट ओनली, और ये सबके लिए सेम है। ठीक है, तो आपको पार्ट 1 अटेंड करने के लिए एज अ पायलट सोचना पड़ेगा। एक पायलट क्या सोचता है एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते टाइम, कब कब किससे बात करनी पड़ सकती है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? यस, नो, एनीथिंग? आर यू गेटिंग दीज पॉइंट्स? Yes, sir. ठीक है, so this was the overview of part 1 examination and part 2 examination. Now I'll show you one sample paper. ठीक है, how this part 1 examination question paper looks like. Please do let me know if shared screen is visible to all. दिख रहा है सबको? Yes, no, anything? Guys, please do let me know. Yes, sir. ठीक है, It is visible. ठीक है. So this is one of the sample paper of part 1. As you can see, there are only 5 questions and 100 marks. ठीक है, 50 is your passing marks, and trust me, 50 means 50. There is no chance of applying cut off or anything. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका कट ऑफ डिसाइड होता है कि इस बार कट ऑफ 60 गया, इस बार कट ऑफ 70 गया. नो, फिक्स्ड पासिंग मार्क्स इज 50. इफ यू कैन score 50, you will be treated as pass. ठीक है, no conspiracy and no any chances of shifting, nothing. ऐसा नहीं कि कम से कम 60 तो स्कोर करो तब पास करूंगा, कम से कम 65 तो स्कोर करो तब पास करूंगा. नो, 50 means 50. ठीक है, I have many examples who have passed in the 50. So this is one of the sample type of part 1 question. As you can see, basically this part 1 question type is a operation. आपका एयरक्राफ्ट एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक जब फ्लाई करता है तो कैसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है. ठीक है, हाउ योर पायलट इज एग्जीक्यूटिंग द प्लान, communicating all the ATCs involved in your operations. ठीक है, so this is the exam pattern of part 1. एक पायलट एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक कैसे फ्लाई करता है, ये देखते हुए कि हमारा एयरक्राफ्ट किस किस एटीसी से कब कब बात करते हुए ऑपरेट करेगा. तो ये हो गया आपके पार्ट 1 का एग्जाम पैटर्न. इसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं. ईच क्वेश्चन बिलोंग्स टू 20 मार्क्स. ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन में सब सेक्शंस हैं तो उसमें 20 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है बाय एनी मींस. ठीक है, दैट इज हिडन, वो आपको बताया नहीं जाएगा. बस कुछ भी हो सकता है पहला क्वेश्चन 5 नंबर का हो, दूसरा 10-10 का हो, बट सब डिवाइडेड रहता है. So each questions consists 20 marks, 50 is your passing marks, and out of these 5 questions, 4 questions are of essay type completely, and 5th questions are always like fill in the blanks, true, false, ठीक है, correct, incorrect, definitions, इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे आपको 5th questions. So basically this 5th questions, ठीक है, this 5th question is basically, if you say, this is a bonus marks for engineering student. Okay, bonus marks for engineering student. I won't say कि पायलट के लिए ये बहुत ज्यादा इजी पड़ता है. नो, इफ यू आर अ इंजीनियरिंग कैंडिडेट आपको ये बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, एंड पायलट्स भी अगर मेहनत करेंगे थोड़ा टेक्निकल टर्म्स पे तो उनके लिए भी आसान रहेगा. बट जनरली ये देखा जाता है कि इंजीनियरिंग कैंडिडेट इसमें बहुत ज्यादा स्कोर करते हैं, फटक से सबका आंसर दे देंगे.
बट पायलट्स यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं ऑन द क्वेश्चन नंबर 5 एंड आउट ऑफ दीज 4, ठीक है, यू कैन आंसर इन असेंडिंग ऑर्डर ओनली। अभी तक आपने जो एग्जाम देखा होगा, व्हाट यू हैव फेस्ड रियली, कि सपोज आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं आता है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेंगे, वो भी नहीं आया, थर्ड कर लेंगे, कोई सा नहीं आया, हमको क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है पहले, तो पहले 10 का आंसर कर लो, बाद में रिटर्न हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। लेकिन इस एग्जाम में ऐसा है कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नहीं आता है तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। दिस इज टू बी आंसर इन असेंडिंग ऑर्डर ओनली। इफ यू डोंट नो द आंसर ऑफ सेकंड, you cannot go to question number third. So certain criteria are making this examination tough and complicated. I won't say tough, it is little complicated, ठीक है। and with all those things, examiners का pressure, ठीक है, examiners का pressure, आपका 1-to-1 मॉनिटरिंग होगा, एग्जाम आपके लिए वैसे ही टफ है, ठीक है। आपका जैसे ही 1-to-1 मॉनिटर होगा, आप वैसे ही नर्वसनेस के शिकार हो जाओगे, ठीक है। तो वेरी सून यू आर गोइंग टू फेस नर्वसनेस। सो दिस इज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट 1. प्लीज डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी एडिशनल डाउट आउट ऑफ दिस। है कुछ एडिशनल डाउट? Yes, no, anything? Anyone? No, sir. Other candidate, please do let me know. ठीक है। So this was basically the exam pattern of part 1, and in the part 2, as I said, you are going to face one-on-one WPC and DGCA person, जहां पे आपका completely oral examination होगा, ठीक है। This is a complete viva, nothing else other than that, ठीक है। So this was the exam pattern of RT, ठीक है। अगर आपको एग्जाम पैटर्न, एग्जामिनेशन कंडक्ट एंड एग्जामिनेशन के रिलेटेड किसी भी टाइप का डाउट है, देन प्लीज डू लेट मी नो। अदरवाइज आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ आरटी। यस, प्लीज डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। एनी अदर कैंडिडेट? नहीं? ओके देन वी आर गोइंग टू सी हाउ आई एम कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। व्हाट इज माय plan of taking to the RT examination with all candidates and how it is being prepared. So with us, there is a plan of 1 month. Okay? 1 month you need to appear. Okay? There are many instructors and anyone who are saying ki it is take hardly 15 days, 20 days. But yes, it can take 15 days, 20 days, depends on the instructors and student. But with us, it is going to take 1 month. ठीक है। आउट ऑफ 1 month 20 लेक्चर विल बी ऑफ कंप्लीट थ्योरी पार्ट, ठीक है। 20 लेक्चर विल बी कंप्लीट थ्योरी एंड 5 थ्योरी फॉर पार्ट 1, ठीक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ पार्ट 1 एंड 5 lectures will be conducted for part 2. So 1 month time I'll be needing each one of you for the examination preparation. And as you can see, syllabus and lesson plan has been already counted and noted. इसी एग्जाम कैलेंडर को फॉलो करके मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। आपको कम से कम 25 दिन का प्रेजेंस इंश्योर करना पड़ेगा, डेली 2 hours इन द नाइट, ठीक है, 9 से 11 रात में, ठीक है, डेली। कोई दूसरा टाइमिंग नहीं है बैच का, ठीक है। एज आई एम नॉट वेरी मच फ्री फॉर दिस running of the course, I have also time limitations, you are also having time limitations.
सो डेली रात में 2 घंटे 9 से 11 ही पढ़ा पाऊंगा और आपको इसी टाइमिंग में अपीयर होना है। अगर आप शिफ्ट में वर्क करते हो, लाइक इफ यू आर वर्किंग इन अ शेड्यूल एयरलाइन, एंड I'll suggest if the RT examination is so much important for you, ठीक है, then at least ask your shift managers to provide you general shifts or any other shifts for at least 1 month. ठीक है, ऐसा मैं सजेस्ट करूंगा सबको कि अपना शिफ्ट का रिक्वेस्ट करके चेंज कराओ। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ दैट कैन नॉट हैपन, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आर ऑलवेज देयर अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, तो अगर आपने आज क्लास मिस किया, कल आप अटेंड कर सकते हो। एंड कंसीडरिंग द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ शेड्यूल एयरलाइनर, जहां पे 2 दिन कंटिन्यू नाइट शिफ्ट होते हैं, 2 दिन आफ्टरनून एंड 2 दिन मॉर्निंग शिफ्ट, तो एग्जाम का सिलेबस हमने ऐसा प्लान किया है कि अगर आपका कंटिन्यूअस 2 दिन क्लास मिस होता है, दैट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट थर्ड डे वेरी ह्यूज। आपको तीसरे दिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आपने 2 दिन के बाद तीसरे चौथे दिन भी अटेंड नहीं किया, 4-5 दिन कंटिन्यू बंक मार रहे हो, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, वेरी ऑनेस्ट, प्रॉब्लम आएगी। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको घोल के पिला दिया जाएगा, नो। अगर आप 2 दिन के बाद तीसरे दिन चौथे दिन अपीयर हो जाते हो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4-4 दिन एब्सेंट कर दोगे, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि 1 मंथ का टाइम अपने लिए निकालो। ठीक है, ट्रस्ट मी, देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स, मल्टीपल रिजल्ट्स आर देयर। ठीक है, और जितने भी मार्केट में हैवॉक बने हुए हैं कि आरटी एग्जाम 1 बार में नहीं निकलता है, 2 बार में नहीं निकलता है, लोग 8-8 बार देते हैं, 10-10 बार देते हैं, सारे रिकॉर्ड्स हमने ब्रेक किए हैं। इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल हमारे पास एटलीस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, देयर आर 5 to 7 स्टूडेंट्स, मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ आरटी, 5 to 7 स्टूडेंट्स आर एग्जाम्पल पहली बार में निकाल के आए हैं। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर हार्डली टेकिंग सेकेंड टाइम्स। 2-3 कैंडिडेट का तीसरी बार हुआ है। ठीक है, बट सेकेंड चांस से ज्यादा किसी ने नहीं लिया। एटलीस्ट व्हाट आई हैव अंडरस्टूड अबाउट द आरटी, बिल्कुल टफ नहीं है कि लोग 10-10 बार इसको पास करने में लेंगे। ठीक है, सो आपको 1 महीने का टाइम अगर मिलता है, दैट विल बी अमेजिंग फॉर यू। ठीक है, बट अगर आप शिफ्ट में काम करते हो, 2 दिन का ब्रेक मिलता है, तीसरे चौथे दिन ज्वाइन कर लो, चलेगा, नेवर देन इशू। ठीक है, एंड अबाउट द फीस आई मस्ट ऑल्सो शेयर विद यू, बिकॉज एवरीथिंग इज related to the money. ठीक है, fees I had kept only 4,500, which is much less than compared to any other institution if you have ever seen. ठीक है, 4,500 इसका चार्ज है, हर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, एंड दिस प्राइस हैज बीन केप्ट स्पेशली कंसीडरिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ टेक्नीशियंस, जिनकी बेसिक सैलरी बहुत कम होती है और वो बहुत कम अर्न करते हैं इन देयर जर्नी। ठीक है, जिनको आरटी की जरूरत होती है, उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं टाइमली पे करने के लिए। सो इट इज ओनली 4,500। ठीक है, वन टाइम पेएबल, यू कैन अपीयर मल्टीपल टाइम्स, बट दिस टाइम आई मस्ट से you can appear by paying 4,500 multiple times, restricted to DGCA circulars. ठीक है, DGCA circulars के आने का वेट करूंगा। I'll not say any kind of lie. एक बार पे करो, जिंदगी भर पढ़ो, इस टाइप की चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बाय द वे। ठीक है, अगर आपका किसी एक इंस्ट्रक्टर के पास 2 बार 3 बार रिजल्ट नहीं होता, यू शुड डेफिनेटली चेंज द इंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो बेसिकली 2 से 3 बार से ज्यादा कोई लेता भी नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए। और आप एग्जाम मल्टीपल टाइम्स अपीयर कर सकते हो, लेकिन इस बार डीजीसीए एग्जाम का सिलेबस चेंज कर रहा है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि अभी 4,500 पे कर दो, मैं जिंदगी भर आपकी गारंटी लेके बैठ जाऊंगा। नो, दैट एग्जामिनेशन सिलेबस नीड टू बी सीन कि क्या पूछता है, क्या पढ़ाना है उसमें। उसमें अगर बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी तो मैं तो नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, मैं क्या, कोई भी नहीं पढ़ाएगा आपको। अभी भले बोल दे कि जिंदगी भर पढ़ा दूंगा, नहीं पढ़ाएगा, बाद में बहुत तरह के बहाने दिखाएगा, बहुत तरह के नखरे दिखाएगा। सो टू बी ऑनेस्ट, आप एक बार पे करो, अभी 2 बार अटेम्प्ट बचे हैं, डेफिनेटली दैट विल बी फ्री फॉर यू। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आर अ जेन्युइन कैंडिडेट, मुझे अगर कहीं से भी लगा कि आपका थोड़ा सा हेल्प करके डीजीसीए वाला एग्जाम दिलवाया जा सकता है,
आई वोंट आस्क फॉर अ पेनी, ठीक है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, बट दैट विल बी डिपेंड्स ऑन योर डिटर्मिनेशन, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं शुरू में नाकर नुकर करके रिलैक्सेशन करवा लेंगे और बाद में खुद ही पंक्चुअल नहीं रहते हैं, ठीक है। सो फॉर मी आई विल बी वेरी पंक्चुअल फॉर इंटायर सेशन, डेली 9 o'clock, ठीक है, 9 to 11, 2 घंटे डेली मैं अवेलेबल रहता हूँ। और मेरे पढ़ाने का तरीका भी आप लोग अगर चाहो तो यूट्यूब पे जाके बहुत सारे सेशंस अपलोडेड है, आप वहां पे जाके देख लो, यू विल बी डेफिनेटली अमेज्ड एंड यू विल बी डेफिनेटली सेटिस्फाइड। स्टिल आफ्टर दैट आई विल सजेस्ट टेक सम डेमो सेशंस, ठीक है, शुरू के 2-4 दिन पढ़ो एंड देन यू टेक अ डिसीजन कि आपको मेरे साथ कंटिन्यू करना है कि नहीं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस आई मस्ट से ज्वाइन एनी अदर इंस्टीट्यूशंस। अगर आपको ये लगता है कि आप खुद से पढ़ के आरटी निकाल लोगे, यू कैन नॉट मेक इट, ठीक है, यू कैन नॉट मेक इट until you are a extraordinary candidate. But for us, like me, I am a mediocre student and I do consider every other ME candidates are mediocre only. तो आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 1 महीना टाइम आपको देना है, 4500 फीस है, डेली 9 से 11 रात में प्रेजेंट रहना है, ठीक है। लाइफ टाइम अपीयरेंस, ये सब चीजों के बारे में बिल्कुल मत सोचो। अगर आप 1 महीना पंक्चुअल रहोगे, आपका मैक्सिमम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाएगा। तो ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि जिंदगी भर पढ़ाई करनी है। हाँ, जरूरत पड़ी अगले एग्जामिनेशन में सपोर्ट करने की, आई विल बी डेफिनेटली रेडी फॉर दैट, ठीक है। सो आगे आपकी डिसीजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ आरटी, आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट। आई हैड क्लियर्ड ईच एंड एवरीथिंग विद यू नाइसली। इसके अलावा आप लोगों को किसी भी टाइप का डाउट है, आप लोग पूछ सकते हो, किसी भी टाइप का डाउट, एनीथिंग। Yes, no, anyone? अगर डाउट नहीं है then I'll close the session for today. This was just introduction of RT and our institution. From tomorrow onwards, same 9 o'clock, I'll continue further, ठीक है। So if you all wish, you can join tomorrow only. Same meeting will be there for tomorrow only. आप लोग ज्वाइन करो, शुरू के 2-3 दिन क्लास अटेंड करो, if you like you can continue, if you don't like you can discontinue, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू अपना नोटिफिकेशन शेयर होता रहेगा, ठीक है। So that's all. This is Kaushal Academy and my name is Ankush Kumar. I am working as an AME on non-scheduled airworks, ठीक है, general aviation of airworks, and I am type rated on a B200 and helicopters. I am a avionics engineer conducting these classes since 2 years, ठीक है, from May 2023, and I have seen many results and even I am surprised with the result of students, ठीक है। So with all hard work of mine, ठीक है, and with this very less fees, I am working with all the satisfaction with the students. मुझे अच्छा लगता है कि हेल्प करो नए कैंडिडेट का जो प्रॉब्लम में है, ठीक है, ब्रेकिंग ऑल दोज अननेसेसरी हैवॉक ऑफ द आरटी कि बहुत टफ है, 10 बार लगता है, 5 बार लगता है, 7 बार लगता है, कुछ नहीं लगता है, 1 से 2 बार में आपका एग्जाम पास हो जाएगा इफ यू विल बी डिसिप्लिन एंड पंक्चुअल, ठीक है। तो we'll continue from tomorrow same 9 o'clock to 11 o'clock evening. No other timings I have. Yes, recordings definitely I used to keep. तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो कल से, ठीक है। फ्यू डेमो सेशंस यू कैन ज्वाइन, ठीक है। डेमो सेशन इन द मीन कि इनिशियल डेज के क्लासेस आप ज्वाइन करो एज ए डेमो सेशन। इफ यू वांट टू कंटिन्यू यू कैन पे द फीस एंड हैव सम मटेरियल्स, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन। जो भी गाइडेंस मटेरियल्स हैं, बुक्स हैं, नोट्स हैं, वो सब आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपॉन पेइंग द फीस ओनली। So that's all for today. I hope everyone is got the clearance and got the clarity about RT exam pattern, type and conduct, and we'll hope everyone to continue from tomorrow, ठीक है। Is that good for everyone? Is that sufficient about RT? समझ में आ गया? या सर। ठीक है, और भी किसी टाइप का डाउट किसी को, यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन सिंपली आस्क लाइक एनी, कुछ भी मन में थॉट आ रहा हो, फालतू से फालतू चीज, लाइक कि सर एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट आते हैं क्या? यस, आते हैं रिपीट, कहाँ जाएगा, वही क्वेश्चन है, वही पैटर्न है, सब रिपीट होता है। तो किसी भी टाइप का आपको डाउट हो पूछो, सिली से सिली डाउट, सिली होते नहीं है बाय द वे, आपको लग भी रहा हो कि पूछूंगा, पूछने में कैसा लगेगा, पूछ सकते हो। यस, सारे क्वेश्चंस रिपीट आते हैं, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, वही सब कुछ आता है, ठीक है। लेकिन इतना हल्का भी नहीं है
कि बिना पढ़े आप पास कर जाओगे. नो, इट विल टेक 1 month ऑफ हार्ड वर्क डेफिनेटली. ठीक है. Done. So that's all for today. I'm closing this session here only, and I'll hope कि everyone can continue from tomorrow. ठीक है, depending on your choice, whatever you like. If you want to continue or discontinue, this is completely your choice. But I'll suggest one thing honestly. कहीं ना कहीं जरूर ज्वाइन करो. ठीक है, बिना पढ़े रिस्क मत लो आरटी में. ठीक है, you have only few opportunity left. ठीक है, चलो, bye bye for today. We'll continue from tomorrow, and this recorded session will be available in WhatsApp group for everyone else. ठीक है, चलो, good night for today. We'll see you tomorrow if you continue. Bye bye. Have a good night. Good night.